Hello, dear children. Today, in our EVS Looking Around book, we will do lesson number 6, Riya'S Journey, Part 2. So, a very good morning to everyone. I hope, dear children, you all are fine. Today, in our Environment Looking Around book, we will continue lesson number 6, Riya'S Journey. Dear children, on the last turn, I explained you about the journey by train, Riya'S journey by train. Just a quick recap of what we did on the last turn. Riya and Jia were two friends and their families decided to go for a vacation. Riya was going to Vapi to her uncle's house and Jia was going to Daman for a holiday. So both the families' tickets were booked, but just 2 days before they had to travel, Jia fell ill and their tickets needed to be cancelled because she was not well. So Riya was sad, but then Jia gave her the idea that you write everything in your diary, take the photographs and videos in the mobile so that I can see what all you enjoyed during the journey. Then Riya's journey started on 28th of May. Riya was living in the Gandhidham city of the Kutch. They were traveling by the train, the Kutch Express. The train arrived at 8:55 p.m. on the station and the train was started from Bhuj district. They boarded the train, and when they boarded the train they took their seats, and then they found that they also had the co-passengers. There was a family and they had the children of their age only, but they had boarded the train from the Bhuj. After everyone settled down, after some times, there was a ticket checker who came, who saw all the tickets, and the people sitting, all the passengers who were sitting in the train were at the right seat. Then at night at 10:15 p.m. the train stopped at the station, and the name of the station was Samakyali Junction. So Riya had a question in the mind that why at some places it is written station and why some places it is called as junction. So she asked this question to her father, and the father replied, when the two tracks got separate from the same point, then it is called as the junction. And at Samakyali, the two separating tracks were the one going to Ahmedabad and the other one was going towards the Palanpur. Now, dear children, we will start our today's work from the second paragraph from here. Train departed. After 2-3 minutes, the two tracks appeared separated from one another. Father showed to me from the window. Now, because from this junction, the tracks were being separated. So, after 2-3 minutes, the train departed. The train left the Samakyali station and the two tracks were getting separated now. And this, the father showed it to Riya through the window. Dear children, when the tracks get separated, there's a lot of noise and you can feel that noise and that the tracks are being separated. मतलब एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जब चेंज होती है तो उसका आवाज़ इतना ज़्यादा होता है कि आपको पता लग जाता है कि ट्रैक्स चेंज हो रही है. और इस तरीके से जब ट्रैक्स चेंज हो गई और वो ट्रेन जो है अहमदाबाद रूट की तरफ मूव करने लगी, और ये सारा जो था फादर ने उसको विंडो में से दिखा दिया था. नाउ आवर ट्रेन लेफ्ट दैट station. I was observing the view outside the window. It was looking like white bedsheet spread across the open plain up to far away in full moonlight. Father said that it is a small desert of Kutch and it is looking like white bedsheet because of the white layer of salt on it. In this areas, Agarias are harvesting salt by making salterns. Thus, we can also see a lot of big heaps of salt over here. Now, as the train was passing by, Riya was sitting near the window. She could see the beautiful scene outside the window. It was a full moon day. That means there was a full moonlight was at the best. Moon was at its best. And you can see the moonlight spread over the entire region. As such, Kutch is the desert region, so you can see a lot of sand over there. तो जब रिया ने विंडो में से देखा तो दूर दूर तक उसको जो है खाली सफ़ेद ही सफ़ेद सब कुछ दिखाई देता है. इट वॉज टोटल वाइट दैट शी कुड सी फ्रॉम द विंडो. ऐसा लग रहा था जैसे वाइट बेडशीट पूरे में स्प्रेड आउट करती है. तब उसके फादर ने कहा कि ये वाइट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है ये सॉल्ट जो है इसके ऊपर बिछा हुआ है. बिकॉज ऑफ द सॉल्ट इट अपीयर्स वाइट. और फुल मून डे पर जब इस वाइट सॉल्ट के ऊपर जब मूनलाइट पड़ती है तो
वो ज़्यादा शाइन करता है. सो समख्याली इज़ अ स्मॉल डेजर्ट रीजन ऑफ द कच्छ. ये एक डेजर्ट कच्छ का एक छोटा सा डेजर्ट रीजन है. और यहाँ पे अगरियास करके एक कम्युनिटी होती है जो सॉल्ट बनाती है सी के वाटर से. तो जो कच्छ में बहुत सारे ऐसे अगरियास कम्युनिटी रहती है जो कि सॉल्ट बनाने का आज भी दे डू दैट वर्क. दे डू द हार्वेस्टिंग ऑफ सॉल्ट. सो दे मेक द स्मॉल सॉल्ट पैंस. छोटे छोटे जो होते हैं पानी के क्यारे बनाते हैं जिसमें सी वाटर एक्यूमुलेट किया जाता है और उसके बाद उस वाटर को छोड़ दिया जाता है फॉर डेज टू ड्राई नेचुरली. सनलाइट से या सूरज की गर्मी से वो पानी धीरे धीरे इवेपोरेट होता है और नीचे जो है उस वाटर में से सॉल्ट रह जाता है. एज यू ऑल नो दैट द सी वाटर इज सॉल्टी, सो दैट सॉल्ट रिमेन्स इन द पैंस. तो दिस इज़ द वर्क ऑफ द अगरियास दैट दे डू ऑफ हार्वेस्टिंग द सॉल्ट. इसलिए जो है बिकॉज इतना सारा चारों तरफ वाइट रहता है सॉल्ट की वजह से, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज वाइट सैंड और वाइट डेजर्ट के नाम से भी फेमस है. तो ट्रेन ऐसे ही आगे बढ़ रही थी. द ट्रेन वॉज मूविंग फास्ट. Sometimes like a bridge was seen in the faint light of the moon. There was the light of vehicles seen on it. While we were crossing the bridge, I asked my father, which is this bridge? This is Suraj Bari Bridge, he replied, which is also known as the entrance of the Kutch. तो ट्रेन आगे बहुत स्पीड में बढ़ रही थी. कभी छोटे बड़े ब्रिज आते थे और बहुत ही फेंट लाइट मतलब हल्की जो डिम लाइट ऑफ द मून में या जो आसपास जो छोटे गांव निकलते हैं वहाँ पे कोई व्हीकल निकल रहा हो तो उसकी रोशनी में जो है थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था. और तभी जो है एक जो ट्रेन थी एक पुल के ऊपर से क्रॉस हो रही थी. तो रिया ने अपने फादर से पूछा कि ये कौन सा पुल है. देन फादर रिप्लाइड इट इज़ सूरज बारी पुल विच इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस पुल्स ऑफ द कच्छ विच इज़ ऑल्सो नोन एज द एंट्रेंस ऑफ द कच्छ. सूरज बारी जो है अगर हम लोग जाते तो हम लोग समझिए कि अगर सूरज बारी ब्रिज पे पहुंच गए दैट मीन्स वी हैव एंटर्ड द कच्छ. तो कच्छ का एंट्रेंस माना जाता है ये सूरज बारी पुल. नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 45. Now this is the Riya'S diary that is continuing. He said that when the bridge was not there, all the trains of Ahmedabad used to go via Palanpur and it used to take a lot of टाइम. और जब ये सूरज बारी का पुल नहीं था तब सारे ट्रेन्स जो थे वो पालनपुर होकर जाते थे अहमदाबाद. तो बहुत ज़्यादा समय लगता था. जब ट्रैक्स डिवाइड हुए समख्याली जंक्शन से तब वहाँ पे 2 ट्रैक्स हुए थे. वन दैट मूव टू अहमदाबाद एंड अदर दैट गोज टू पालनपुर. तो जो दूसरा ट्रैक था अहमदाबाद का वो तब बना जब सूरज बारी का पुल जो था वो बन गया था. उसके बाद वो ट्रैक बना अहमदाबाद के लिए. और उससे पहले ओरिजिनली दैट पालनपुर ट्रैक वॉज ऑलरेडी देयर. तो ऑल द ट्रेन हैड टू गो टू पालनपुर एंड then they moved out to Ahmedabad, which used to take a lot of time. Immediately I asked my father. We had seen 2 separate railway tracks before then was the way to Palanpur, right? Father said yes. From that route only the train was going. तो तुरंत ही उसको रिया को याद आया कि जो दूसरा ट्रैक था जो पालनपुर जाता था उसी ट्रैक में पहले ट्रेन्स चला करती थी बिफोर द ब्रिज वॉज नॉट देयर. It was 11 at night, so father told me to sleep. Mother spread out the bed sheet on our seat. All the passengers were going to sleep. There was toilet facility in the train. I went to toilet with my mother and then went to sleep. तो रात के 11 बज रहे थे. ये सब बातें करते करते रात के 11 बज गए. तो फादर ने रिया को कहा कि अब सो जाओ, रात के 11 बज रहे हैं. तो मदर ने जो थी सीट के ऊपर बेड शीट स्प्रेड कर दी और सारे पैसेंजर्स तो थे उस कंपार्टमेंट के अंदर, उस कोच के अंदर सोने जा रहे थे बिकॉज इट वॉज लेट एट नाइट. सो तो ट्रेन में टॉयलेट फैसिलिटी तो होती है. सो रिया वेंट टू टॉयलेट विथ हर मदर एंड देन शी वेंट टू स्लीप. I tried to sleep but I was not able to sleep due to the train's noise. अब रिया जो थी सोने की कोशिश तो बहुत कर रही थी लेकिन ट्रेन जब चल रही थी और फास्ट ट्रेन चलती तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है. तो बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी इसलिए रिया सो नहीं पाई. There was another family near our seat. The girl in the family seemed to be of my age. तो उनके सीट में जो उनके को पैसेंजर्स थे वो भी एक फैमिली थी जिसमें एक लड़की थी जो कि रिया के एज की ही थी.
शी वॉज ऑल्सो नॉट फीलिंग स्लीपी, उसको भी नींद नहीं आ रही थी. वी बोथ टॉक्ड, हर नेम वॉज फयोना. तो दोनों मिलकर बातें करने लगे और उस लड़की का नाम क्या था? उस लड़की का नाम फयोना था. शी हैड सम शॉर्ट स्टोरी बुक्स, आई ऑल्सो टुक वन बुक फ्रॉम हर. उसके पास बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरी बुक्स थी, तो रिया ने भी एक उससे स्टोरी बुक ले ली और स्टार्टेड रीडिंग इट. Moving on to page number 46, and started reading it. I was reading the book, I slept. और बुक पढ़ते पढ़ते उसको नींद आ गई. Suddenly I woke up. I saw the light coming from the window. और अचानक ही उसकी आँख खुल गई तो उसने क्या देखा कि बारी जो खिड़की है उसमें से बहुत लाइट आ रही है. आई सैट एंड पीप्ड आउट ऑफ द विंडो. तो उसने बैठ के विंडो में से पीप आउट किया, झाँका. इट सीम्स टू बी अ बिग सिटी हैड कम. तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा शहर आया हो, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा थी तो उसको ऐसे देख के लग रहा था. The train was passing. The city was looking very beautiful all around because of the lightning. जैसे जैसे वो ट्रेन आगे बढ़ रही थी, उस सिटी को क्रॉस कर रही थी, वैसे वैसे उसको वो सिटी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी क्योंकि चारों तरफ बहुत ज़्यादा लाइट थी. आई हैड नेवर सीन सच अ काइंड ऑफ ब्यूटिफुल सीन एट गांधीधाम. उसको कैसा लगा कि मैंने तो कभी गांधीधाम में ऐसे खूबसूरत सीन देखा ही नहीं. द ट्रेन वॉज पासिंग अंडर द ब्रिज और समवेयर फ्रॉम द रेलवे क्रॉसिंग वेयर ऑल अराउंड टॉल बिल्डिंग्स एंड द एटमॉस्फेयर वॉज क्वाइट. और जब ट्रेन जैसे अंडर ब्रिज से पास हो रही थी या कोई रेलवे क्रॉसिंग से पास हो रही थी तो उसके आसपास जो उसने देखा वो टॉल बिल्डिंग्स थे, वो बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी. और एटमॉस्फेयर वॉज क्वाइट बिकॉज रात था तो सब बिल्कुल शांति थी. आई टुक माई मदर्स मोबाइल एंड टुक सम फोटोग्राफ्स एंड वीडियोज़ ऑफ दोज ब्यूटिफुल सीन्स विच वी विल एंजॉय वॉचिंग. तो उसने तुरंत ही अपनी मम्मी का मोबाइल लिया और उसने उसमें से कुछ फ़ोटोग्राफ्स और कुछ वीडियोज़ click किए so that they can enjoy watching later on, and they can keep it in their memories that when we were traveling from Gandhidham to Vapi we had such a beautiful sightseeing. Now our train reached at one big station. Father also woke up. He told that Ahmedabad had come. अब रात को कितने बजे हैं घड़ी में? रात को 2:30 हुए हैं. दैट मीन्स इन द अर्ली इन द मॉर्निंग 2:30 हुए हैं, या रात के 2:30 हुए हैं. रात के 2:30 बजे थे. और जब उसने देखा वह ट्रेन रुकी तो उसके फादर भी जग गए और उन्होंने कहा कि अहमदाबाद स्टेशन आ गया है. तो वो जो लाइट वगैरह जो उसको दिख रही थी उस वक्त वो किसकी थी? दैट वॉज ऑफ द अहमदाबाद सिटी. The atmosphere was filled up by the noise of different hawkers. Some of the words were. अब स्टेशन होता है और बड़ा स्टेशन होता है तो हमेशा क्या होता है, स्टेशन में बहुत सारे हॉकर्स होते हैं या लारी वाले सब जो होते हैं सामान बेच होते हैं, खाने का सामान, पानी, बुक्स, मैगजीन्स, बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें जो होती हैं स्टेशन में बेची जाती हैं. तो जब अहमदाबाद स्टेशन आया, ट्रेन रुकी तो बहुत सारी डिफरेंट उसको आवाज़ें आ रही थी. अब कैसी कैसी आवाज़ आ रही थी? चाय, गरम गरम भजिया, पूरी शाक, कोल्ड वाटर बॉटल, बनानास, वड़ा पाव, चीकू, एप्पल. इस तरीके से सब लोग, कोई चाय बेच रहा था, कोई भजिया बेच रहा था, सम वॉज सेलिंग पूरी साग, कोई पानी की बोतल बेच रहा था, कोई केले, कोई एप्पल. इस तरीके से सब जो है अपना अपना सामान बेच रहे थे. फादर सेड दैट द ट्रेन विल बी एट the station for 20 to 25 minutes. Father got down from the train to fill water bottle. I also went with him. अब क्योंकि बड़ा स्टेशन था तो यहाँ पर जब बड़े स्टेशंस होते हैं तो yesterday also I told you that at big stations the halt of train is more. तो यहाँ पर भी ट्रेन जो थी 20 to 25 minutes के लिए रुकने वाली थी. तो रिया और उसके फादर ट्रेन में से उतरे और पानी की बोतल भरने गए. Moving on to page number 47. The platform was crowded. Passengers were buying from the hawkers. There were many other trains at the platform. अब जो था यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म, बिकॉज अहमदाबाद का प्लेटफॉर्म तो काफ़ी बड़ा स्टेशन होता है तो यहाँ बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स थे. तो इनके प्लेटफॉर्म में जो ट्रेन खड़ी थी उसके अलावा जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स थे वहाँ पर भी और दूसरी ट्रेनें खड़ी हुई थी और सब हॉकर्स जो थे अपना सामान बेच रहे थे. इसलिए सारे बहुत जगह जो थे पैसेंजर्स आ रहे थे, कुछ जा रहे थे, कुछ ट्रेन में चढ़ रहे थे. सो देयर वाज लॉट ऑफ कमोशन इन द on the platform also. There were people with red uniform carrying load and running around. और यहाँ पर जो थे you can see this picture. तो यहाँ पर बहुत सारे कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने रेड कलर का जो कोट पहना हुआ था और वो लोगों का सामान लेकर इधर उधर ट्रेन के लिए जा रहे थे. उनको हम क्या कहते हैं? They are called as the porters.
there was an important announcement on the mic. Some passengers were waiting for their train. I was enjoying the scene. We took bananas and chikus from the hawkers and got into the train. तो इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी हुई और कुछ पैसेंजर्स जो ट्रेन के लिए वहाँ वेट कर रहे थे उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी हुई। और वो जो रिया जो थी ये सारा सीन बहुत ही इंजॉय कर रही थी क्योंकि उसने कभी ऐसा देखा ही नहीं था। उन लोगों ने बनानास और चीकू लिए और वापस वो ट्रेन के अंदर आ गए। जो ये रेड ड्रेस वाले लोग होते हैं जो लोग का सामान उठा के जो ट्रेन में रखते हैं उनको हम पोर्टर्स यानी कि कूली कहते हैं। उनके रेड कलर का जो उनका कोट होता है एंड दे हैव अ बैच एंड दैट दे हैव अ बैच ऑल्सो टू वेयर एंड दे हैव अ स्पेसिफाइड नंबर ऑन दैट बैच। उसके ऊपर एक स्पेसिफिक नंबर भी होता है एंड दे आर कॉल्ड एज पोर्टर्स और द कूलीज दैट वी से। Now it was 3:45 a.m. in the morning. Early in the morning, 3:45 a.m. था, सुबह का टाइम था. By the time train started, we ate bananas and chikus and I went to toilet. Now I was not feeling sleepy. और जब तक ट्रेन वहाँ से शुरू हुई, अहमदाबाद स्टेशन से डिपार्ट हुई, तब तक उन्होंने बनानास और चीकू खा लिए थे और अब जो थी रिया को नींद नहीं आ रही थी. I was having board of snakes and ladders game. Himaksh, Fiona and I played snakes and ladders. तो इन्होंने स्नेक्स हिमाक्ष और फियोना भी चक गए और उन्होंने स्नेक्स और लैडर्स का गेम खेला. इन द मीन टाइम इन द मीन टाइम द ट्रेन अराइव्ड एट नडियाद स्टेशन. और ऐसे ही बात करते करते खेलते खेलते जो है अहमदाबाद से नडियाद स्टेशन आ गया जहाँ पर फियोना हैड टू गेट डाउन. वहाँ पर फियोना को जो था नडियाद स्टेशन पे उतर जाना था. फियोना सेड बाय टू अस एंड देन आई एंड हिमाक्ष वेंट टू स्लीप. अब फियोना जो थी वो नडियाद स्टेशन पे उतर गई. उसने उन लोग को बाय कहा और फिर जो थी हिमाक्ष और रिया जो वापस सोने चले गए क्योंकि वो बोर हो गए थे खेल के. कितनी देर तक आप एक ही गेम खेलेंगे. तो थोड़ी देर उन्होंने खेला. उसके बाद वो वापस फियोना उतर गई नडियाद स्टेशन पे और वो दोनों सोने चले गए. नाउ दिस लेसन इज़ ओवर. ये पार्ट 1 है लेसन का. पार्ट 2 इज़ योर लेसन नंबर 7. तो इसके बाद जो है हम टेक्सचुअल एक्सरसाइज का पार्ट करते हैं. तो यहाँ जो स्टोरी है हमारी 3:45 AM पर ख़त्म होती है. 28 मई को वो लोग बैठे थे 8:55 AM को यानी PM को. और ये जो स्टोरी अभी 29 तक की हो गई है. अब जो नेक्स्ट लेसन हम करेंगे 7th लेसन उसमें इसका आगे कंटिन्यूएशन है. बट यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स है जिसको हम करेंगे. यहाँ पे क्वेश्चन है हैव यू एवर ट्रैवल्ड बाय ट्रेन? इफ यस देन फ्रॉम वेयर एंड up to which place? Yes, I have traveled by train from Delhi to Ahmedabad when we came to my uncle's place. Now next is which फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड इन द ट्रेन. कौन कौन सी फैसिलिटीज़ ट्रेन में प्रोवाइड होती है? राइट इन डिटेल्स. डिफरेंट टाइप ऑफ कोचेस लाइक AC होती है, स्लीपर होती है, फर्स्ट क्लास होती है. ऐसे अलग अलग कोचेस होती हैं. देन देयर टॉयलेट फैसिलिटीज़, वॉशिंग प्लेस होती हैं, फैंस होते हैं, लाइट्स होते हैं. इन AC कोचेस ब्लैंकेट्स आर प्रोवाइडेड, मील्स एंड स्नैक्स एक्सेट्रा इज प्रोवाइडेड एंड द सीट्स आर कंफर्टेबल. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं कोच में प्रोवाइड की जाती हैं. नाउ पेज नंबर 47. Have you ever traveled by road or rail at night? What did you see on the way? Write in detail. Yes, I have traveled by train at night. The train passes through villages, fields, rivers, bridges, and it is seen on. If it is seen on moonlight, it just looks awesome with the stars shining in the sky. The noise of the hawkers when the train stops is also heard. Now, what did Riya see in the Ahmedabad from? What did Riya see in Ahmedabad from the train? Right, Riya saw multi-storied buildings, beautiful lightnings, flyover, bridges, roads with gates, etc. Before reaching Ahmedabad station, before reaching the Ahmedabad station, there was lot of noise in the. There was no noise in the air. मतलब एकदम it was complete silence. उसके बाद यहाँ पर कुछ और questions है. यहाँ पर आपको लिखना है पेज नंबर 48 पर.
Did you buy anything from the hawkers at the railway station during your travel? आपने कुछ हॉकर से खरीदा, जैसे चाय है, बिस्किट है, न्यूज़पेपर है, वाटर बॉटल है, कोल्ड ड्रिंक है, एप्पल्स है, बनाना है, मैगजीन है, कॉफ़ी है, समोसास, आइसक्रीम, टॉयज, डोसा, श्रीखंड, लस्सी, ये बहुत सारी चीज़ें जो आपको हॉकर्स के पास से मिल जाती हैं स्टेशन पर. What did Riya see at the Ahmedabad railway station? Riya saw many different stalls selling things, hawkers, porters, passengers coming and going out of train from the other platforms. What type of voices Riya heard at Ahmedabad railway station when the train arrived at platform? Riya heard the sound of hawkers selling tea, coffee, snacks, fruit, etc. She also heard an important instruction or an information on a microphone or a mic. So dear children, ये सारे question answer जो है आपको text book में लिखने के बाद one time you have to write this in your notebook also, and few hard words also you have to write it in your notebook. Bye. Have a nice day. Now, some of the hard words of lesson number 6, Riya'S Journey Part 2. PASSCNGERS passengers, UNIFORM uniform, TROUSERS trousers, SAMKHIYADI Samakhari, JUNCTION junction, AHMEDABAD Ahmedabad, PALAN Palan, PUR Palanpur, OBSERVING observing, AGARIYAS Riya'S, HARVESTING harvesting, SALTERN Saltern, SURAJ Suraj, BARI Bari Suraj Bari, BRIDGE bridge, ENTRANCE entrance, IMMEDIATELY immediately, FACILITY facility, FIYON Fiona, PEEPED peeped, LIGHTING lightning, ATMOSPHERE atmosphere, HAWKERS hawkers, PLAT plat, FORM form platform, ANNOUNCE announce, MENT announcement, NADIAD Nadiad, INSTRUCTION instruction, INFORMATION information, and PORTERS porters. So these 28 hard words you have to write it in your notebook, classwork one time and homework also one time.